My dear student of standard 8 and welcome to you, and today we are going to discuss chapter number 3, that is Indian Constitution. Okay, so without any wasting any time, let's begin the first question. Here is your first question. What do you mean by the constitution? Okay, it can be asked in your exam for 2 marks. एक बार हम लोग थोड़ा ऊपर से समझ लेते हैं ये है क्या. कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है. कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी बुक होती है जिसके अंदर पूरा कंट्री कैसे वर्क करेगा उसके रिगार्डिंग पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न फॉर्म में है एंड वो प्रियम्बल के साथ स्टार्ट होता है. ऑल दिस पॉइंट यू हैव टू बी मेंशन. ओके, सो आई एम रीडिंग द आंसर. अ सिस्टमेटिक फर्स्ट पॉइंट, a systematic compilation of a set of rules to run the government of a country is known as the constitution of the country. So in your first point, the definition of the constitution is given. Okay, and number 2, the constitution can be written or unwritten form. Let me tell you, India's constitution is in written form and it can be both. And the third point, our constitution start with the preamble. Okay, so these points I have taken from the textbook. Let's move to the second question. Who were the main leaders in the formation of the Constitution of India? Okay, it can be asked in an exam for 2 and 3 marks. सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने ये आंसर ये भी मैंने टेक्स्ट बुक में से लिया है. इसमें आपको बस उन लीडरों के नाम बताने जो जिन लोगों ने मिलकर हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया है. ओके, सो आई डोंट थिंक इसमें कोई एक्सप्लेनेशन पार्ट है. जस्ट आई एम गोइंग टू रीड द नेम्स. फर्स्ट पॉइंट, लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार बलदेव सिंह एक्सेट्रा प्रोवाइडेड देयर गाइडेंस. ओके, सो दीज आर द पर्सन दोज हु हैव प्रोवाइडेड देयर गाइडेंस. You can search on them on the YouTube and you can see how they are looking. Some of the people are given in the textbook also. Now point number 2, Frank Anthony represented the Anglo-Indian community of HP Modi represented the Parsi community. See friends, sometime it happens कि हम लोग जो हमारे जो पार्लियामेंट में लोग जाते हैं तो वो पब्लिक द्वारा इलेक्टेड लोग होते हैं, बट देर आर सर्टेन पीपल जिनका सिलेक्शन होता ही नहीं है. से फॉर एग्जांपल हमारे पार्लियामेंट में सारे मेंबर गए लेकिन एक मान लो कोई भी क्रिश्चियन नहीं है और क्रिश्चियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने वाला कोई है ही नहीं, तब आपको ये वर्ड याद रखना है, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी. दैट मीन्स फॉर पर्टिकुलर रिलीजन या कोई पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल से एक रिप्रेजेंटेटिव आता है. एट द टाइम फ्रैंक एंथनी वॉज देयर एंड HP मोदी, दे पीपल आर representing their own community. Okay, especially Parsi is given here. Third point, the committee had various constitution scholars like Aladi Krishna Swami Iyer, Dr. B.R. Ambedkar, we know it very well, and K.M. Munshi. So these are the expert people, those who know, those who have studied all the constitution of the different countries. Okay, so these are the experts. There are female members like Sarojini Naidu and Vijaya Lakshmi Pandit. Okay, Vijaya Lakshmi Pandit is a sister of our first Prime Minister Jawaharlal Nehru. Okay, and Sarojini Naidu, you also know it. And the fifth point, Dr. Rajendra Prasad was elected the president of the Constitution Assembly. So here you have to remember only the names. Okay, let's move to the next question. Well, here the question is, what are the salient features of the Constitution? So हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषता क्या है. ओके, सो हियर यू हैव टू रिमेंबर दिस वर्ड्स ओनली. डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, रिपब्लिक नेशन, फेडरलिज्म and fundamental rights are the salient feature of the constitution. So you have to remember only this part only. Okay, it can be asked in your exam for 2 to 3 marks. Moving to the fourth question, why is the constitution necessary for a nation? Okay, क्या ज़रूरत है हमको कॉन्स्टिट्यूशन की देश के लिए. सो टू इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम फॉर 2 to 3 मार्क. पहले तो हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि ये है क्या. देखो, अगर हम किसी भी कंट्री को चलाना हो अच्छे से तो रूल्स तो होने ज़रूरी हैं, एंड रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होगा तो क्या होगा, प्रॉब्लमेटिक होगा. फॉर एग्जांपल हम लोग ट्रैफिक का एग्जांपल लेते हैं. मान लो ट्रैफिक का कोई रूल्स ही नहीं है, कोई कहीं से भी आ रहा है, कोई कहीं से भी जा रहा है. जो चौराहा होता है, 4 रास्ता होता है, वहाँ पे यूजुअली क्या होगा, ट्रैफिक जाम होंगे, एक्सीडेंट्स होंगे. तो वी डोंट वांट दैट. तो हमको कुछ सिस्टमेटिकली करना होगा. सो रूल्स आर रेगुलरली, और यहाँ पे तो पूरे कंट्री को चलाने की बात हो रही है. ओके, पॉइंट नंबर 1 शुरू करते हैं. नो कंट्री कैन फंक्शन विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन. सो कॉन्स्टिट्यूशन के बिना कोई भी कंट्री फंक्शन नहीं कर सकता. अगर मैं मान ही नहीं सकता किसी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है. अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो समझ लो कंट्री नहीं, जंगल है ना. जंगल में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन चलता है.
पॉइंट नंबर 2, अ कॉन्स्टिट्यूशन सर्व मैनी ऑब्जेक्टिव, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कंट्री कैसे वर्क करेगा, कंट्री का क्या मतलब मोटिव है, ओके। पॉइंट नंबर 3, इट इज़ ए डॉक्यूमेंट विच फाइनली व्यूज द एथोस एंड द आइडियाज़ ऑफ द कंट्री, है ना, आइडियाज़ शो करता है ना, हमारे सिटीजन्स का वोट डाल सकते हैं, हमारा कंट्री सेकुलर कंट्री है कि नहीं है, एंड ऑल दैट। पॉइंट नंबर 4, इट टेल्स अबाउट द काइंड ऑफ गवर्नमेंट आवर कंट्री वुड हैव, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री है, प्रेसिडेंशियल है, बहुत सारी गवर्नमेंट हैं अक्रॉस द ग्लोब। सो ये कॉन्स्टिट्यूशन में शो किया जाता है, ओके। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई इज़ इंडिया नोन एज अ रिपब्लिक, सो हम लोग इंडिया को रिपब्लिक कैसे कहेंगे। सी, एक बात ध्यान रखना, गवर्नमेंट कैसे फॉर्म्ड होती है, जब हम लोग वोट करते हैं, हम एज ए पब्लिक, ओके। सो गवर्नमेंट को हम लोग गवर्नमेंट बनाते कौन है, हम लोग ही बनाते हैं, ओके। इसके अलावा हम लोग टैक्सेस भी पे करते हैं, तो गवर्नमेंट को अपनी गवर्नमेंट रन करने के लिए जो पैसे चाहिए, जो खर्चा चाहिए, वो हमारे थ्रू ही मिलता है, ओके। एंड इसके लिए फिर बाद में जो गवर्नमेंट है वो सभी कास्ट रिलीजन सबके लिए काम करती है। सो डेट इज़ वाई इंडिया इज कॉल्ड रिपब्लिक। नाउ लेट अस गो टू द पॉइंट। रिपब्लिक, फर्स्ट पॉइंट, रिपब्लिक मीन्स द गवर्नमेंट डेट ऑब्टेन पावर फ्रॉम द पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, है ना। सो गवर्नमेंट इज रिसीविंग पावर फ्रॉम द पीपल, मे बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डेट यू हैव टू बी रिमेंबर। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। We have adopted a democratic republic system, okay, so of government, which means that powers are not limited in the hands of the few privileged people. Rather, it is accessible to all the citizens irrespective of their caste, class, religion और gender. सी, पहले क्या होता था मोनार्की सिस्टम में कि किंग होता था तो किंग का बेटा ही राजा बनेगा, मीन्स एक पर्टिकुलर फैमिली है जो सब कुछ मैनेज कर रही है। बट थिंग्स इज नॉट लाइक दैट इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम। डेमोक्रेटिक सिस्टम में सपोज हम लोग एग्जिस्टिंग मिनिस्टर से खुश नहीं है तो उसको हम लोग नेक्स्ट टाइम चेंज कर सकते हैं, जस्ट वी हैव टू कास्ट अवर वोट इन अगेंस्ट हिम और इन समवन एज फेवर, ओके। सो हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं अगेन। When was the Constitution of India enforced? Very important question. And हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब फॉर्म हुआ था। सी, ऑन 26 नवंबर 1949 द कमिटी पास द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो कमिटी थी उसने हमारे पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन पास किया कब, 26 नवंबर को, विच वॉज एनफोर्स्ड ऑन 26 जनवरी 1950, ओके, एंड इट इज़ इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 26 जनवरी 1950, ओके। सो पास हुआ था 26 नवंबर को एंड लागू कब से हुआ था, 26 जनवरी से। एंड यू नो इट वेरी वेल, 26 जनवरी इज अवर रिपब्लिक डे, ओके। लेट अस मूव। सो वी आर कमिंग द फाइनल part of the chapter, and that is some objectives are there. Fill in the blanks. Our constitution start with the preamble, we know it very well. Number 2, Dr. Rajendra Prasad was the president of the Constitution Assembly, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं. Point blank number 3, India has adopted democratic system of government, just now we discussed, okay, and the election were held in our country in every 5 years, okay. So let us move. Identify me, मुझे पहचानो, okay. First, I am the federal state, so India, of course. I am the constitution head of the state, president. See, अगर आपको कोई पूछे सबसे बड़ा हेड कौन है हमारे कंट्री में, देन प्रेसिडेंट. नो डाउट सारे पावर्स प्राइम मिनिस्टर एंजॉय करता है, बट हु इज़ द रियल हेड, प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, ओके. पॉइंट नंबर आइडेंटिफाई में थर्ड नंबर पे आते हैं. द एडमिनिस्ट्रेशन of any country can't run without me. Constitution, just now we have discussed, and I am the Republic Day, 26 January is the most simplest one. I was elected as the president of the drafting committee of the constitution. So Dr. Bhim Rao Ambedkar, इस पर अभी सीरियल्स भी आ रहे हैं. I don't remember recalling the channel name. So friends, here is your Q&A session of chapter number 3. Hope so you like it. Thank you very much. Have a nice day and enjoy.